ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆ, ਕੁਛ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭੱਬਲ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਪਟਾਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 5 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 7 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਨੌਲਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। 9 ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। 11 12 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2-2 ਮਿੰਟ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। मीटिंग काफ़ी लंबी चली और कई पहलुओं पे चर्चा हुई और जैसा आदरणीय काका सिंह कोटला जी ने बताया कि कई कॉन्फ्रेंसेस कई महापंचायत रखी गई हैं। कल सबसे पहली जो महापंचायत है वो जिला फरीदकोट के डल्लेवाड़ा गांव में होगी। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं उन सभी महापंचायतों में शामिल होंगे और कल सुबह 8 बजे पूरे जत्थे के साथ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी यहाँ से रवाना होंगे और हर महापंचायत में जाके वो प्रयास करेंगे कि वो 2 मिनट किसानों को संबोधित करें। मई के महीने में हमारी हरियाणा में कई महापंचायतें हैं, हरियाणा और राजस्थान में वो कई महापंचायतें फाइनल हो गई हैं और आने वाले 4-5 दिनों में उनकी डेट्स हैं वो सारी फाइनल कर दी जाएंगी, वो घोषित भी कर दी जाएंगी। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ये MSP गारंटी कानून की लड़ाई जो चल रही है, जो ये 13 फरवरी 2024 से शुरू करी गई है, हम इसको जीत तक लेके जाएंगे। इस लड़ाई को, इस आंदोलन तक हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर देश के किसान को बचाना है, अगर देश के किसानों की आत्महत्या रोकनी है तो उसका तरीका एक ही है, MSP गारंटी कानून बन जाए।
देश के हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित हो जाए। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी एक बात बार बार कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा लगभग 70 साल की मेरी उम्र हो गई और पिछले 40 सालों से वो सामाजिक जीवन में है, आंदोलनों में है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कहते हैं, और वो ग्रेजुएटेड भी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ना तो मैंने कभी किसी आंदोलन में देखा, ना मैंने कभी किसी किताब में पढ़ा कि सरकारें बातचीत के लिए बुलाएं न्योता देके और फिर वहां पे बंधक बना लें। इस तरीके का व्यवहार ना तो हमने पहले कभी देखा था, ना सुना था। ये वाकई में बहुत शर्मनाक है हमारे देश की सरकारों के लिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इसके अलावा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी एक बात को लेकर और बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और जब भी हम उनसे मिलते हैं तो पहली बात वो ये पूछते हैं कि भाई जो ये अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ये ट्रेड को लेके, ट्रेड जो ये एग्रीमेंट को लेके जो ये चर्चा चल रही है, इसका अपडेट क्या है। वो समय समय पे इसका अपडेट लेते हैं और वो बहुत चिंतित है इस बात को लेके कि यदि अमेरिका के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भाई भारत सरकार उन पे से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर ले, तो डल्लेवाल साहब की बहुत ज़्यादा चिंता है कि अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी हमारे देश की सरकार ने दबाव में कम कर ली तो भारत का किसान पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा। क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमारे देश में जो खेती है वो जीवन यापन का एक तरीका, वो एक लाइवलीहुड का एक वे है, जीवन जीने का वो तरीका है। अमेरिका के अंदर खेती है वो बिजनेस है, बड़े बड़े एग्री बिजनेस वहाँ पे खेती में इन्वॉल्व हैं। अमेरिका में अगर आप देखोगे वहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस के नाम पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उससे भी 100% से ज़्यादा वहाँ पे सब्सिडी दी जाती है वहाँ की सरकार द्वारा। 78 लाख रुपया प्रति किसान को प्रति वर्ष वहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे जो प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टीमेट है वो नेगेटिव है, मार्केट प्राइस सपोर्ट है वो भी नेगेटिव है। इसलिए भारत का किसान अमेरिका के किसान से कंपटीशन नहीं कर सकता। अमेरिका किसान को भारी भरकम सब्सिडी मिलती है, इसीलिए वो चीप रेट पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट करने को तैयार होता है। तो हमारी ये विनती है, दोनों फोरमों की, देश के सभी किसानों की विनती है। जो प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते थे कि भाई मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, ये उनके इम्तिहान का समय है। अगर वो सही मायनों में ये दिखाना चाहते हैं वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे तो वो अमेरिका के खिलाफ स्टैंड ले और ये कहें कि अमेरिका से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कोशिश कर रहे हैं वो हमारे देश में एक्सपोर्ट करने की, वो हम नहीं होने देंगे और उस पर भारी भरकम हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा के रखेंगे। इसके अलावा लास्ट में एक चीज़ हमें ये भी समझनी चाहिए, देखो अमेरिका जो कोशिश कर रहा है, चाहे वो मक्का भेजने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो व्हीट भेजने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सोयाबीन भेजने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट भेजने की कोशिश कर रहा है, हमारा जो देश है, हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सबकी आस्था का सम्मान करना यहाँ पे हमारे देश के संविधान के अनुसार बहुत जरूरी है। जो अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो अमेरिका में गायें हैं, जो और उनके जो पशु हैं, दुधारू पशु हैं, वो नॉनवेज भी खाते हैं। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस तरीके की चीजें कंज्यूम नहीं करते हैं। तो अगर वहां से ऐसे पशुओं का दूध आएगा और डेयरी प्रोडक्ट आएंगे जो नॉनवेज खाते हैं जो अपने चारा में, और फिर हमारे देश की सरकार अगर उनको यहाँ पे खिलाएगी तो मुझे लगता है कि वो एक तरीके से देश के जो अलग अलग धर्म हैं उनकी भावनाओं के भी विपरीत होगा। अमेरिकी सरकार दबाव डाल रही है कि वह अपने कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए जीएम सीड्स का यहाँ प्रचार करना चाह रही है, जबकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रूफ मौजूद है कि इस तरीके से जीएम खतरनाक है। तो डल्लेवाल साहब का, दोनों फोरमों का, सभी किसानों का इस बात को लेके बहुत चिंता है और सभी किसानों का ये मानना है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का मानना है, किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पे अमेरिका से आने वाले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे से इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करनी चाहिए, उस पे से इंपोर्ट ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि हमारे देश के किसानों के इंटरेस्ट का हम रक्षा कर सकें।